السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عشق اور محبت کے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنے بیان سننے اور سنانے کو بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت دینے کے لیے پیارے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سامعین محترم، وقت گزرتا جا رہا ہے جو ہمارا محتاج نہیں، بلکہ آپ کے سامنے ناظم اسٹیج بھی یہ جواب دیتے جا رہے ہیں کہ آپ تقریر کی ضرورت نہیں۔ اگر ناظم اسٹیج کو ہمارا سننا منظور ہوتا تو بیٹھتے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محفل برخاست ہو، لنگر کھایا جائے اور گھر جایا جائے۔ کیا خیال ہے؟ میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سالوں سے ہمارے باؤ عبد الخالق صاحب میلاد النبی کے اس نورانی جلسے میں مجھے بھی فقیر کو دعوت دیتے رہے، مگر بڑی کوششوں کے باوجود بھی میں نہیں آ سکا۔ آج اللہ نے چاہا، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، تو میں نے ایک اور جو بڑا خصوصی پروگرام تھا وہ بھی چھوڑا، مگر وہ اس سے کم درجے کا تھا، بڑا پروگرام یہ تھا۔ تو میں اتنا خوش ہوا ہوں یہاں کے ماحول کو دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہانے قائم رکھے۔ آواز نعت خوانی کے لیے ان کی چلتی ہے جو ابھی نوجوان ہوں، بچے ہوں، اور جن کے پورے 32 دانت موجود ہوں، جس کے منہ میں دانت بھی نہ ہوں اور عمر کا 70-71 سالہ ہو، تو وہ اگر نعت سنائے تو لوگ کہیں گے کہ اگر یہ چپ ہو جائے تو ہماری جان جائے۔ مگر اس نیت سے آپ مت سنیں کہ آواز اچھی ہے، اس نیت سے سنیں کہ میرے سرکار کی نعت اچھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت کے ایک جید عالم دین علامہ ظفر علی خان مظفر آبادی نے ایک نعت پاک لکھی ہے، اسی کے چند بند میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں: وہ شمع اجالا جس نے کیا، وہ شمع اجالا جس نے کیا، 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا، 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ دانوں سے کھل نہ سکا، وہ
کیا چند اشاروں میں ہے کرنیں ایک ہی مشعل کی. یہ ہم سنیوں کا ایمان ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے. ہے کرنیں ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ہمارے بزرگوں نے ایک عقیدہ لکھا ہے 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے منہ کو 1000 مرتبہ گلاب کے پانی سے دھوئیں اور مشک سے معطر کریں پھر بھی ہم اس قابل نہیں کہ آپ کا نام لے سکیں. اور یہ جملہ ایک ایسے عالم دین کا ہے کہ جو صرف عالم نہیں وقت کے ولی اللہ گزرے ہیں اور عارف مرد گزرے ہیں. آج تقریر کا ٹائم نہیں ہے, تھوڑی سی باتیں بیان کروں گا, مگر یہ میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے بھی کہ خاموشی کے ساتھ سنیں, چاہے ہمیں لنگر نہ دیں. آپ کے لنگر کی اتنی ہمیں ضرورت نہیں, وہ بھی برکت والا لنگر ہے, مگر باتیں سننی ہے ضروری. ہمارے بزرگوں نے لکھا 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب وضو ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. ہمیں ایک درس ملا ہے اس نور مصطفیٰ سے کہ سرکار دنیا میں تشریف لائے, اللہ کی جانب سے نور بن کر آئے اور کتاب ہدایت لے کر آئے. اس نور کی تمنا کیا ہے اور اس نور کی دعوت کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے نبی کو یاد کرو, پاک اور صاف ہو کر یاد کرو. آج ہمارے بالخصوص ہمارے سنی بریلوی علماء جو ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ امام اہل سنت کی تاریخ زندہ رہے. میں یہ کہوں گا امام اہل سنت کی تعلیمات زندہ رہے, وہی تعلیمات ہی ان کی تاریخ ہے. اعلیٰ حضرت کی ملفوظات, ایک کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت کے نام سے شائع ہوتی ہے اور آج بھی ہے, جو ان کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نے لکھی ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت کی ہیں, جیسے ملفوظات خواجہ اجمیری ہیں, محبوب الہی کی ہیں, بہت سارے 8 اولیاء کرام کی ملفوظات ہیں جو ہشت بہشت کے نام سے مشائخ چشتیہ کے اندر وہ پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی ملفوظات ہیں جس کا ایڈریس ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت. لکھنے والے ان کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ. اس ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک واقعہ لکھا ہے, غور سے سننا, خاص کر کے نوجوان طبقہ. اعلیٰ حضرت نے کی ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت تحصیل ملک تشریف لے کے, جو بریلی شریف سے قریب میں ایک تحصیل پڑتی ہے, بریلی ضلع میں ہے, وہاں آپ نے وعظ فرمایا. واعظین بھی سن لیں ذرا غور سے اس کو, مقررین حضرات بھی سن لیں, ممبر رسول پر نعت خواہاں بھی چیز کو سن لیں, اور نمازی حضرات خصوصی سے سنیں. اعلیٰ حضرت نے وعظ فرمایا. وعظ فرمانے والا کوئی معمولی نہیں, وقت کا مجدد ہے, امام اہل سنت ہے, وقت کا سید العلماء ہے اور سید المشائخ ہے, عارفوں کا استاد ہے, معمولی شخصیت نہیں ہے. وعظ فرمانے کے بعد رات گھر آئے اور جب سوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب اگلی بات سننا ذرا غور سے, اور اس کو دل میں جگہ بھی دینا, نوجوان طبقہ خصوصیت کے ساتھ.
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मगर हैं बहुत दूर हैं, करीब नहीं है। तो आला हजरत की तड़प बढ़ी कि मैं जल्दी से उठूं और सरकार के पास चला जाऊं और सरकार से मुलाकात करूं। और इन्होंने दौड़ना शुरू किया सरकार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए। और सरकार ज्यादा दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, सरकार दूर होते जा रहे हैं और ये भागे जा रहे हैं कि मुलाकात हो। तो जब मुलाकात नहीं हो रही है तो पीछे से तड़प के आपने या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, आज मुलाकात का नसीब नहीं हो रहा है मामला, आप दूर जा रहे हैं, मामला क्या है। आगे से जवाब मिलता है, अहमद रजा जब भी तुम मेरी हदीस सुनाया करते थे, जब भी तुम वाज किया करते थे, तुम्हारा मामूल ये था कि तुम अपनी जिंदगी में हुक्का पिया करते थे। और हुक्का पीने के बाद गुलाब के पानी से बार बार मुंह को धोना, बार बार मुंह को धोना, साफ मुंह सुथरा करके गुलाब के पानी से मुंह के अंदर जो एक बदबू होती है उसको जाहिर करने के बाद मेरी हदीस सुनाया करते थे। तुम्हारे हर वाद में मैं शामिल होता था। और जो तुमने आज दिन को बात किया है, हुक्का पीने के बाद गुलाब के पानी से मुंह नहीं धोया बल्कि सादे पानी से मुंह धोया है। और कुली करके तुमने मेरा वाद कहा है, मेरा दिल नहीं माना कि आज तुम्हारे वाद में शरीक हूँ। मलफूजात आला हज़रत मैंने हवाला दिया है किताब का, इसलिए उलमाए बरेली इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। जो बीड़ियां पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे मौलवी इस बीमारी बिदअत में शरीक हैं, समझे नहीं। मैं बयान दे रहा हूँ किसी नक्शबंदी का नहीं, सिलसिला कादरिया के इमाम हैं और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत बरेलवी हैं, उनकी मलफूजात की ये बात मैं सुना रहा हूँ आपको। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या अहमद रजा तुम्हारे वाद में मैं आज शरीक नहीं हुआ इसलिए कि आपने हुक्का पिया और गुलाब के पानी से मुंह नहीं साफ किया। सरकार आला फरमाते हैं उसके बाद से मैंने हुक्का पीना छोड़ दिया। ये उस जिंदगी का वो आखिरी हुक्का था कि सरकार ने वो छुड़वा दिया। और ये सोचा हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी हैं और नक्शबंदियों का अकीदा ये है, हुक्का पीने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला खत्म अंबिया में नहीं बैठ सकता और खत्म तिलावत कुरान में नहीं बैठ सकता। ये नक्शबंदियों की किताबें बताती हैं, समझे नहीं। हमारे पहले बुजुर्ग ये कहा करते थे, जो लोग लाल शरीफ से बैठे हैं उनसे पूछ लो कि जब उर्स शरीफ होता था, जब महफिल खत्म मुनाकिद होती थी तो फरमाते थे नशा आला हमारी महफिल से उठ जाओ, होता था नहीं। बोला शफी साहब आप लाल शरीफ से बैठे हैं, बोला नक्शबंदियों का ऐलान होता था कि नशे वाले महफिल से उठ जाए। मैंने अपने कानून से सुना, मेरे उस्ताद मोहतरम सूफी नूर मोहम्मद साहब की मस्जिद में खत्म अंबिया पढ़ा जा रहा था और मेरे उस्ताद मोहतरम ने महराब के अंदर बैठकर ये कहा कि साढ़े जनाबाना हुक्म आ के खत्म अंबिया के नशे वाला आदमी कोई नहीं बैठेगा, लिहाजा जेड़े तुसे सिगरेट बीड़ियां या नसवार मल हो तो तुस उठ जाओ, तुस उठ जाओ। तो मेरे एक मामू वो नसवार मलते थे, वो महफिल से उठ गए। जब वो महफिल से उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे ना, तो मेरे वालिद साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि साला बहनोई थे। तो मेरे वालिद साहब ने उसे फरमाया कि ओ बात से ना क्या गल है पापा में है नसवार मुंह लगी नहीं है नसवार मतलब। तो आज सूफी और ऐलान किया था, जनाबा ने हवाला दिता कि साढ़े जनाब वो ऐसे बंदे जी महफिल भी नहीं बालने। तो वाले साहब फरमाने लगे क्या बात से ना बड़े अफसोस की गल है कि नसवार छोड़नी कबूल नहीं की थी, तो मेरे नबी ने महफिल की छोड़नी कबूल की थी। मेरे वाल साहब बड़े दूर भी होते थे, नबी पाक ने महफिल तू उठना तो कबूल कर लेता मगर तू नसवार छोड़नी नहीं कबूल की थी। और आगे एक लफ्ज गुस्सा में फरमा के उतरती छोड़ा आखिर दिन में फिक्र तक करना है पापा दुआ करो। वाल साहब फरमान लगे सूफी जी तू दुआ करो अपने पीर खाने ने हवाले नाल के अल्लाह बाग से नसवार छिड़का छोड़े, तू सच्चे दिल नाल तोबा कर छो बैठ महफिल सबके सामने तोबा हुई, महफिल वापस आई।
समझो ना, हम वो नक्शबंदी हैं, यहाँ नक्शबंदी बहुत सारे हैं ना। तो ये बताओ, मैंने नक्शबंदियों का हवाला पहले नहीं दिया, मैंने कादरियों का दिया और बरेली शरीफ के इमाम का दिया और किताब का नाम बताया मलफूजात आला हजरत। आज भी किताब मकतबों के अंदर दस्तयाब है। लिहाजा नौजवान नस्लें जो नाते पढ़ते हो, जो नमाजें पढ़ते हो, खुदा के लिए ये बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, बीड़ी सिगरेट छोड़ दो। मगर जब मैं ये कहूँगा बीड़ी सिगरेट छोड़ दो तो कोई ये कहेगा कि मुफ्ती साहब ने बीड़ी सिगरेट छुड़ा दिया पर शराब नहीं छुड़ाई, शराब का नाम नहीं लिया। नहीं, बीड़ी सिगरेट जो शरीयत में मुबाह है, जिसके पीने वाला जहन्नमी नहीं कहला सकता, मुबाह है, समझे नहीं, हराम नहीं है। जो चीज हराम नहीं है, सिलसिला नक्शबंदिया ने सिर्फ मकरू कहा है। अगर मकरू पर इतनी पाबंदी है तो फिर जिसकी शराब की हुर्मत कुरान ने बताई है। बोलो, आज सबसे बड़ी बिदअत ये शुरू हो गई है, हमारी नौजवान नस्ल शराब पीना शुरू हो गई है, समझे नहीं। और सिर्फ शराब पर पाबंदी नहीं, बल्कि नशा में हर वो चीज शामिल है जिसके पीने के बाद इंसान की अकल खत्म हो जाए, चाहे वो पीने वाली शराब हो, चाहे वो गोलियां हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, हर वो नशा आवर चीज जो है शरीयत इस्लामिया ने उसको हराम करार दिया है, समझे नहीं, हराम करार दिया है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बड़े फॉरवर्ड कहते हैं। फॉरवर्ड एक अंग्रेजी का लफ्ज कोई बोलता है, तर्जुमा में नहीं जानता, अलबत्ता मैं मफहूम समझता हूँ कि जो अपने आप को बहुत आगे कहते हैं ना, तो जब वो खुराफात करते हैं तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड नहीं है, ये फराडी है। ये क्या है? फॉरवर्ड नहीं है, ये फराडी है। आप ये बताओ कि जब कोई आदमी मजबूर होता है, जब कोई आदमी अपने आप को मजलूम समझता है तो कहाँ जाता है? जज के पास। कौन जाता है? जज के पास जाता है। और अगर जज ही रिश्वतखोर हो तो फिर उसके पास दरखास्त देने का कोई मकसद है? कोई मकसद है? नहीं है। एक आदमी अगर शराब पीकर मजबूर हो गया और बेहोश होकर अस्पताल चला गया और अस्पताल के बीएमओ आगे गट पी के मस्त हैं, तो आप कौन किसका इलाज करेगा? बोलो ना, कौन किसका इलाज करेगा? ये बताइए कि वो कौन सा डॉक्टर है जिस डॉक्टर ने किताब में लिखा है कि शराब बीमारियों का इलाज है? अरे मेरे रब का कुरान कहता है कि ये उम्मुल खबाइस है। मेरे नबी फरमाते हैं ये खबासतों की माँ है और तमाम बुराइयों की जड़ है। मेरे नबी फरमाए उससे सरकार से बड़ा कोई डॉक्टर है? तो अगर बीएमओ सीएमओ अगर शराब पीने वाला हो तो बताओ कि फिर बीमार कहाँ अपनी बीमारी का इलाज कराएगा? समझे नहीं? तो उसको फिर बीएमओ सीएमओ के पास नहीं जाना, उसको कहाँ जाना है? उसको लार शरीफ गुलार शरीफ जाना है। इसलिए कि लार वाले और गुलार वाले जो हकीम और डॉक्टर है ना, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं लगता है, उसको फिर वो दरवाजा खटखटाना है। समझे नहीं? कोई अगर मजबूर होता है। पिछले दिनों का एक वाक़या है, मुझे कहने की आदत है, मैं कभी कभी क्या जाता हूँ, कहीं एक कोई शराबियों का टोला था, पुलिस वालों ने पकड़ा और थाने में दिया। पुलिस वालों ने पकड़ा और थाने में शराबियों को दिया। तो आगे एसएचओ साहब जो कहने लगे, भाई इन्हें पौड़िया कसते आंदा ये है जनाब शराब पीने, अरे पैसे हैं इंदा पीने ने, तू ही का चट्टी है वो। शर्म होनी चाहिए ऐसे एसएचओ बदनसीब को कि इतना बड़ा अफसर हो, चाहे डीएसपी हो, एसएचओ हो, कोई भी हो, अगर वो कौम की, अगर वो कानून की पासदारी नहीं कर सकता। किस कानून में लिखा है कि नौजवान शराब पी के और गली कूचों के अंदर आवारा कुत्ते की तरह फिरते रहे? किस कानून में लिखा है? और कानून पर अमल दरामद कराने वाला जिम्मेदार ऑफिसर के है कि अपने पैसे न पीना। लानत हो ऐसी अफसरी पर। क्या ख्याल है कि मैं गलत कह रहा हूँ? हमारी कौम कहाँ जा रही है? नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है? समझे नहीं? मैं एक जगह गया, मुझे एक आदमी, पिछले दिनों की बात है, और एक जनाजे पर गया। जनाजा पढ़ाने के बाद बाहर निकला तो मुझे एक बुजुर्ग मिले। कुर्बान जाइए बुजुर्गों की जिंदगी पर। ये बुजुर्ग रह गए हैं थोड़े से, जो पहले वक्त के लोग जिनको अच्छी हवाएं लगी हैं, अपने बड़ों की हवाएं लगी हैं,
अच्छी तरबियत वाले लोग थे। हम गाड़ी पर बैठे थे, वो बुजुर्ग कहने लगे मुफ्ती साहब बहुत परेशानी को वक्त है। मैं जी के मुफ्ती साहब बैठ देख लियो, मकान देख लियो है कैसी हवेली बनी हुई है, तो सारा इसके बीच 10% गेस्टेड ऑफिसर है इस इलाका के बीच। मुफ्ती साहब इस इलाका में इतनी शराब शुरू हो गई है, इतनी शराब शुरू हो गई है कि मामूली मजलिस के बीच दुनियादारी की मजलिस नहीं, मुफ्ती साहब खत्मा की मजलिस में शराब की पेटियां का खुले लगे। एक बुजुर्ग का बयान था लेकिन मुफ्ती साहब अल्लाह नबी को वास्तव है कि सारी तबलीग छोड़ो और सारा उलमा नू मुत्तहिद करो, तो इस शराब की लानत थी मुसलमानों को बचाओ। समझे? ये कालाबन वाली बात है। आप अपने इलाके का मुताला करें, कालाबान हो, पठाना तीर हो या ये इलाका हो। मैं इस इलाके के एक चीज में मुबारकबाद दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बेल्ट है, ये मैं आते हुए बात कर रहा था कि ये हमारा बेरा, ये कसाब, ये कुछ इलाका जो है ये कुछ खबास्तों से बचा हुआ है। कौन सी खबास्तें? ना यहाँ पे शिया है, ना वाबी है, ना मिर्जाई है। ये बात है ना? क्या ख्याल है? सबसे बड़ी खबासत ये है जब अकीदा खराब हो जाए। ये लोग खुश अकीदा हैं, वलियों के मानने वाले हैं, और दुआ करो अल्लाह ताला हम सब के घरों से इस शराब की लानत को से हमारी औलादों को बचा ले। समझे? बड़ी लानत है ये मामूली बात नहीं है। अरे अगर हमारे बुजुर्ग ये हैं कि अगर हम में से कोई आदमी निस्वार बीड़ी सिगरेट करने वाला, मेरे आका उनकी वक्त का इतना बड़ा आलिम और मुज्तहिद हो, इतना बड़ा वक्त का मुजद्दिद हो, अगर उसकी किताब में सनद आ चुकी है, तो मैं बिल्कुल उलमा अहले सुन्नत से बाबांगे दौड़िए कहूंगा कि जितने नारे मरवाते हो इसके बजाय आप मेहनत करो और ये नौजवान नस्ल को अपने साथ जोड़ो, एक माहौल बनाओ, अपने करीब इनको लाओ। समझा नहीं? मेरे किबला हजरत साहब कोटली वाले सरकार, सुभान अल्लाह। समझा नहीं? किबला साहब फरमाने लगे भाई गाले है ना कि एक खला आ गया, एक खला, मैं जनाब क्या तकरीर में खला आ गया, मैं सामने बैठा था, फरमाने लगे खला आ गया कि मौलवियों ने दरमियान, तब पढ़े लिखे अफसरों ने दरमियान जुदाई हो गई, नफरतें हो गई। अब मदरसे ने तालिब इल्मां ने दरमियान, तब स्कूल और कॉलेज ने बच्चे ने दरमियान एक खला हो गया। समझे नहीं? ए मदरसे ने बच्चे, स्कूल कॉलेज ने ही समझने के शैतानी जमात है। समझे नहीं? ये शैतानी जमात है। स्कूल और कॉलेज में बच्चे मदरसे वाले समझने कि ये मंगन वाले लोग हैं, ये मंगी खान वाले लोग हैं, तो गरीब तो मिस्कीन लोग हैं। उन्हें दुआ ना जहन भाई खराब हो गया है। दो गलती पर है। अगर तालिब इल्म उन्हें आगन के शैतानी टोला ये भी गलत है। तो असें कोशिश की कि भाई ये स्कूल कॉलेजा ने बच्चे जड़े ना ये सारा करीब हो जाए। तो उन्होंने कोशिश ये की, आज हजरत साहब के मदरसे के अंदर जब दर्श होता है, जो लोग देख के आए, हमारे कारिगरी साहब है, ये इनाम साहब है, हमारे ये पुलिस वाले हैं, देख लो, ये जिन्हें अभी नात पड़ जाए ये पुलिस वाला आदमी है ना। ऐसे पुलिस वाले हूँ तो कुर्बान जाइए ना, समझो ना। मैं ये गुजारिश करूंगा, वो बाऊ खालिद साहब खड़े हैं, आपकी जानी पहचानी, ये आगे इनका बेटा खड़ा है कि नहीं है? बोलो, ये पूरी तहसील के अफसर हैं, गेस्टर हैं कि नहीं है नहीं? ये पेंट लगा सकते हैं, शर्ट लगा सकते थे, लिबास दूसरा पहन सकते थे। आज नबी की विलाद में इन्होंने इस्लामी लिबास पहना है ना। ये दर्ज दिया है कि अगर तहसील पूरी का सबसे बड़ा अफसर, समझे नहीं, जो खुराक देने वाला है, खाने पीने की अशिया सप्लाई करने वाला, अगर ये इस्लामी लिबास को पहन सकता है, तो जो बिल्कुल मुलाजिम नहीं है वो अपना लिबास जो गैर शरई रखेगा। आज बाबू साहब के सर पर से उठा टोपी, आपको इस्लामी बाल नजर आएंगे। बच्चे देखो कैसे सलवार कमीज में हैं, इस्लामी ड्रेस में, कितने अच्छे लगते हैं, है ना? काबिले मुबारकबाद है या नहीं है? तो अगर हम अवाम का मुताला करेंगे, हमारे अंदर एक बिदअत आ रही है, वो बिदअत ये आ रही है, हमारे बच्चे छोटे से लेके बड़े तक वो ईसाइयों का ड्रेस, ईसाइयों का बेस बनाना शुरू हो गए हैं। और इधर से बिल्कुल उस तरह मार दिया या मशीन लगा दी और ऊपर से कुत्ते की तरह बाहर रख लिए, है ना? कुत्ते की तरह। इसका अंग्रेजी में कोई नाम भी है। जब जाओगे किसी भी बार की नाई की दुकान पर, वहाँ लिखे हुए हैं कि जो कुत्ता कट है उसका रेट ये है, और वो जो जानवरों का कट है उसका रेट ये है। तो एक अल्लाह ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, नबी की उम्मत में बनाया, मगर वह
कुत्ते की शक्ल में अल्लाह ने नहीं बनाया। अगर अल्लाह ने कुत्ते की शक्ल में नहीं बनाया, तुम कुत्ता बन के क्यों दुनिया को दिखा रहे हो? बोलो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से कहा कि एक जमाना आएगा, आखिर वक्त आएगा, और ईमान वाले लोग जो होंगे, मुसलमान कहलाने वाले लोग जो होंगे, उस वक्त भी एक कौम होगी जो सर के बाल आधे काटेंगे और आधे रखेंगे जानवरों की तरह। तो फरमाया और अल्लाह के फरिश्तों की सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक उनके ऊपर लानत बरसे। ये हदीस रसूल सुना रहा हूँ। मिलादुन नबी का जलसा है, कान खोल लो जितने बाप और जितनी माए हो। अगर हमारे सामने हमारे बच्चे अगर ये कुत्ता काट के रहे, हम सोचें कि ये मॉडर्न दौर है, कल ये शराब पिएगा मॉडर्न दौर है, माँ को जुतियों से पीटेगा मॉडर्न दौर है। लानत तो ऐसे मॉडर्न दौर पर जहाँ बाप की इज्जत नहीं, माँ की इज्जत नहीं, मेरे नबी की शरीयत का एहतराम नहीं, उस मॉडर्न दौर को क्या करना है? हमें तो इस्लामी दौर चाहिए, हमें तो नबी के आशिकों का माहौल चाहिए। क्या ख्याल है? माहौल दुरुस्त करो अपना, कोशिश ये करो बच्चा नमाजी हो जाए, कोशिश ये करो बच्चा नमाजी हो जाए। हमारे तो जो दीनी माहौल हैं वो भी अजीब किस्म के हैं। तो मुझे सूफी साहब ने कहा कि हजरत गाली ना लेतरियां की है ना शादियां की है, गाल तुम सुना लो खत्म ही खत्म वह, और जरा खत्म खान खत्म क्या कहना था, दुआ मंगा रोटी खाकर मौलवी चला देना, तो जरा खुसूसी मेहमान आए ना तो फिर जनाब पेटी शराब की खुले। ये बताओ अगर सुबह से शाम तक 4 बजे तक अगर मौलवियों ने आके खत्म पढ़ा और जिस घर के अंदर तिलावत कुरान हुई और शाम को खबीसों ने आकर वहाँ अगर वो शराब की बोतलें खोली, तो पीने भी वालों पर अल्लाह उनको हिदायत दे, ऐसे माहौल से अल्लाह हर मुसलमान को बचाए। फिर हमें तशवीश ना हो तो क्यों ना हो? बोलो। होनी चाहिए तशवीश, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज ये मांगते हैं जी हमें सिर्फ जो मौलाना साहब आप तकरीर कर रहे हैं, हमें बुखारी का हवाला चाहिए, और जो बुखारी का ज्यादा हवाला मांगते हैं, जिस बेल्ट के बुखारी का हवाला मांगते हैं, उस बेल्ट में आजकल गोलियों वाले ज्यादा आगे हैं, टिक्कू वाले ज्यादा आगे हैं। बड़े बड़े गेस्ट जो इंजीनियर और डॉक्टर, उनके बच्चे पढ़ने के बाद जो पंजाब से वो गोलियों के आदी बनकर, सिरिंजों के, टिक्कू के आदी बनकर यहाँ आ गए हैं। एक आदमी मुझे कहने लगा जी पुरानी महफिल में एक अहले हदीसों का लड़का है, वो सुबह से सुबह भी हर रोज टिक्का लगाता है, नशे का शाम भी लगाता है। तो मैंने कहा दुआ करो अल्लाह ताला ये सारे इनके बच्चे टिक्कू के आदी हो जाएं, ये सारे गुस्सा के रसूल मर जाए, जान बच जाए, जान बच जाए। जो नबी के दुश्मन है हमें इनकी क्या जरूरत है? समझे नहीं? बच्चा अगर डॉक्टर या इंजीनियर बना और वो गोलियां खाता है, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर पढ़ा वो टीके जहरीले लगाता है, बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बना शराब का आदी हो गया, उसकी जिंदगी पर लानत होनी चाहिए। उससे बेहतर तो ये है ना जो बकरियां चुराए, जो भेड़े चुराए, जो घर में माल मवेशी देखे, माँ बाप की खिदमत करे, लेतरियां करे और जिम्मेदारी करे और मजदूरी करके माँ बाप की खिदमत करे, मैं कहूँगा वो जन्नती बच्चा है। क्या ख्याल है? ये दुनिया की दौलत जो है ये साथ देने वाली नहीं है। अगर साथ देने वाली कोई चीज है तो सिर्फ ईमान है, और ईमान नबी की ताबेदारी में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ईमान है। बस बुनियादी चीज ये है। हमारी हर चीज अब रिवाज की तरफ हो गई, हमारी हर चीज अब रिवाज की तरफ हो गई। शादी ब्याह के मामलात आते हैं, पूरी कमान घर का मालिक जो है वो किसी बूढ़ी के ऊपर सट्टा डाल देता है, समझे नहीं? जो बूढ़ी होती है ना, अगर वो हमारे हाजी महबूब साहब ने बेड़ा उठाया कि बच्चियों को पढ़ाओ, इसलिए कि सबसे ज्यादा खुराफात औरतों में आती है, समझे नहीं? तो सबसे जो बूढ़ी होगी ना बड़ी, तो उससे फैसला लिया जाता है जी शादी कैसी होनी चाहिए। वो कहती है जी 8 14 होना चाहिए, दीदा भी होना चाहिए, दोस्त कितना होना चाहिए जी, इतना दोस्त होना चाहिए। और वहाँ मौलवी भी बेबस हो जाते हैं, मौलवियों की बात चलती नहीं। और जब वो निकाह शरीक का मामला आता है, अरे शरीक को कम करने से, शरीक के कम काम को उन्होंने एक खाम का फ्रॉड बना के रख दिया, और शरीर के काम में 4-6 आदमी खाली बिठाते हैं, बाकी सारी खुराफात दुनियादारी की होती है। नाम रखा है निकाह सुन्नत, निकाह सुन्नत, और उस पर खर्चे इतने होते हैं 20-20 हजार 30-30 हजार के खाली कार्ड बंटते हैं, खाली कार्ड बंटते हैं।
اور جب हाजी महबूब के मदरसे में कोई आ जाए कि ये बच्चियों का इस्लामी दरसगाह है, कोई चंदा दो, तो बड़ी मुश्किल से कोई 10 रुपए निकलता है ना। कार्डों पर हजारों रुपया खर्च हो जाता है। वो कार्ड कोई मायना रखता है? आज तो कार्डों की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने बनाना है, आप मोबाइल खोलो, खाली बटन ऑन करो, जी ये बात है मेरे बच्चे की शादी, आप आ जाए, बोलो, आप फेस टू फेस बात कर लीजिए, बात से बात, जुबान से जुबान, उनसे अपनी दरख्वास्त कीजिए, मेरे बच्चे की शादी आप आ जाए। इससे बड़ा कार्ड कोई और है? समझे नहीं? फजूलियात और ऐसी बिदअत, और वो लोग के जो हमारी सलातो सलाम को बिदअत कहने वाले, सरकार के ऊपर दुरूद शरीफ को बिदअत कहने वाले, खतमात को और मिलादुन नबी को बिदअत कहने वाले, जनाब 40-40 हजार के खाली कार्ड बनाते मैंने देखे, 40-40 हजार के कार्ड बनाते देखे। जब रिटायरमेंट आती है वादियों के अफसरों की, तो 40-40, 50-50 हजार के कार्ड बांट देते हैं। मैं पूछता हूँ, यहाँ तुम्हें बिदअत क्यों नहीं नजर आती? सबसे बड़ी बिदअत तो ये है, ये किस हदीस में लिखी है? और वो कार्ड बनता है, उसमें बिस्मिल्लाह लिखी होती है, सरकार का वहाँ रोजा बना होता है, बड़े अच्छे अच्छे कलिमात होते हैं, और जब वो महफिल बर्खास्त, रिटायरमेंट की मजलिस बर्खास्त हो जाती है, और फिर आखिर वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो रद्दी की टोकरी में झाड़ू लगा के वो कहीं गंदी जगह फेंक दिया जाता है। उस कार्ड की कोई हैसियत है? उसका कोई अदब है? कोई अदब नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बिदअत तो ये है, सबसे बड़ी बिदअत क्या है? यही बिदअत है। लिहाजा इस तरह हमारी कोई तवज्जो नहीं। हमें क्या करना है? हमने बुराइयां कैसे खत्म करनी है? कोशिश ये करनी है, अपने घर के माहौल को दुरुस्त करो, अपनी औलाद को दुरुस्त करो। ये औलाद, जैसे कि हमारे अजीज वाजिद महबूब साहब सुना रहे थे, कल क़यामत के दिन ये औलाद जो है ये गरेबान पर आप डालेगी। चाहे कितनी प्यारी दुनिया में करके आप रखो, चाहे किसी खानगा से आपने मांगी हो, किसी वली अल्लाह से दुआओं से मांगी हो, मगर इसका ये मकसद नहीं कि जो वली अल्लाह से दुआओं से मांगी है तो वो शराब में मखमूर रहे और आज तक से मासना हो। नहीं, अगर वली की बारगाह से औलाद मांगी है, उस औलाद की तरबियत भी करो कि ताकि ये औलाद नमाजी रहे। और जब औलाद नमाजी हो जाएगी, सब खुराफात से वो बच जाएगी। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, सबसे बड़ा नूर जो है वो नमाज है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करे वो नमाज पढ़े, जो मुझसे मोहब्बत करे वो नमाज पढ़े, इसलिए कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। समझे नहीं? और फरमाया कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी महराज मोमिन की जो है वो नमाज। और मेरे आका फरमाते हैं, मरने के बाद कब्र के अंदर अगर कोई पीछे जाने वाला कोई वकील है और काबिल तरीन और मुकम्मल वकील है, सही वकील है, तो फरमाया उसकी नमाज है। जब मैयत कब्र में जाएगा तो मुनकिर नकीर आएंगे सवाल करने के लिए। यह हदीस सुना रहा हूँ, आपने कई बार सुनी होगी, मगर याद करो बार बार इस हदीस को। मुनकिर नकीर आएंगे, आके सवाल करेंगे, मन रब्बों का, तो वो अगर नमाजी है तो कहेगा मुझे साइल सवाल करने वाले थोड़ा मौका दे, नमाज असर का वक्त जा रहा है, मैं नमाज पढ़ लूँ फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। यह हदीस पाक है। सवाल, अगर दुनिया में नमाजी है तो उस वक्त मुनकिर नकीर के पहले सवाल में वो यही जवाब देगा, मुझे मौका दिया जाए मैं नमाज पढ़ लूँ। फरमाया अगर आशिक रसूल है और नमाजी है तो मुनकिर नकीर कहेंगे, यही तो हम पूछने आए थे कि क्या मेरे आका की उम्मत का तू उम्मती है? क्या मेरे आका ने जो आपको तोहफा दिया क्या तू उसका हामिल है? समझे नहीं? ये एक पहचान है। और फिर बुजुर्गों ने लिखा, जब मैदान महशर में जब कोई पुरसानी हाल नहीं होगा तो फरमाया कि रोज महशर के जहां गुदाज बुवद अव्वली पुरसिश नमाज बुवद। मैदान महशर में जब सारे नामा अमाल तोले जाएंगे, सबसे पहले सवाल ये होगा, बोल नमाज पढ़ता था? सबसे पहले सवाल होगा, नमाज पढ़ता था? लिहाजा सबसे पहले ये है कि बच्चियों को नमाजी बनाओ, बच्चों को नमाजी बनाओ, जो आपके महताज हैं उन्हें नमाजी बनाओ। और जिनको आप नमाजी बनाओगे, मरने के बाद ये नमाज पढ़ेंगे, ये कुरान पढ़ेंगे, ये तिलावत करेंगे, और यही माँ बाप के लिए खत्म है, यही नियाज है, यही सदका जारिया, सब कुछ यही है। और अगर औलाद नाफरमान है, बेनमाजी है, तो फिर कुछ पढ़ने और पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। साल के बाद एक आदमी को अगर रोक दिया जाए किसी कोठरी में, हफ्ते के बाद जाकर उसको अगर आप चूरियां खिलाने लगो,
اگر میٹھا دودھ پلانے لگو پورا ہفتہ اس کو روک دیا جائے کوٹری میں، ہفتے کے بعد کوئی پلانے لگو، کوئی مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے چاہے تھوڑا دیا جائے، ہر روز دیا جائے، ٹائم و ٹائم دیا جائے۔ اولاد فرمانبردار یہ ہے جو صبح بھی ناشتے میں باپ کو یاد کرے، ماں کو دوپہر کے کھانے میں یاد کرے، رات کو بھی یاد کرے، ہر وقت ماں باپ کو یاد کرے۔ اسی لیے فرمایا 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور میں حاضری جب دی جائے گی اور حاضری کے آخر میں دعا مانگی جائے گی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ بولو خوراک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچی نا؟ ابا جان قبر میں ہے، ماں قبر میں ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نبی پر صلاۃ و سلام بھیج کے آخر میں یہ دعا رکھی گئی ہے کہ تیری نماز مکمل ہو گئی، لہذا اب تو ماں باپ کا بھی حق ادا کر لے۔ لہذا یہاں